Everyone tells you which books to use, how many hours to study, and how many mocks to give. Hello guys, so I am Minisha Padi and currently I am in HNLU. I cracked CLAT 2025. So here are some truths which I am gonna reveal that nobody tells you about CLAT. I wish I knew this earlier. ये मुझे भी पता होता तो मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री होती अपने CLAT के टाइम. बट डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू गाइज. अब मुझे पता चल गया है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग को अपने जर्नी में वो चीज़ हेल्प हो. फर्स्ट थिंग दैट नोबडी टेल्स यू इज दैट योर मॉक स्कोर्स विल हर्ट. Yes, guys, that's a real truth. That's like I've experienced a lot. It means I got 35 in my first mock and it was terrible. It was a terrible experience for me to see that. Kyunki, like for example, I'm preparing so hard. I'm giving my 6 to 7 hours daily just to see these kind of marks. No, right? But yes, it does happen कि देखो अब आप अपना फर्स्ट मॉक दे रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी गेटिंग सम लाइक flying marks like 18, 19 in your first mock itself. I gave around 50 mocks. Then I started getting 65 and 70. Now can you imagine like how much of struggle like struggle is in part and parcel of your CLAT preparation, I would say. And the most important thing is to keep your mental sanity. It means कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करोगे आफ्टर सीइंग सम ऑफ योर मॉक स्कोर्स. एंड गेस वॉट, जब मेरे 65 और 55 भी टच करने लगे, आफ्टर दैट ऑल्सो समटाइम्स इट वेंट डाउन एंड समटाइम्स इट वॉज लाइक आई गॉट वेरी गुड मार्क्स. सो ऐसा होते रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. फ्लक्चुएशन इज़ अ पार्ट ऑफ क्लैट प्रिपरेशन कि आपके कभी भी अचानक से 80 मार्क्स आ जाएंगे, कभी भी अचानक से आपके 65 आ सकते हैं. आई हैड एक्सपीरियंस्ड दैट अ लॉट. तो आई एम सेइंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि ऐसा होता है. So what I used to say myself is that this one mock is not my identity. Like this one mock can't decide that I won't be able to crack CLAT. I'll do better in the next mock. I'll try my best to not repeat the mistakes which I have repeated here. Like for example, maintain your diary. I've said so many times this particular thing. Like I used to maintain a small diary. I used to jot down every mistake and I used to see that diary before giving another mock. This was my golden rule and I have shared this in all my videos. I have told so many times, so kindly do that, because it is not like that it is something subjective. It applies to everyone. It will give you extra flying marks. I am giving you my guarantee that maintaining a diary and revising it every day will improve your marks like from here to here. Like I won't say that कि आपका एक मॉक में अगर 70 आ रहा है तो दूसरे में 80 आएगा by maintaining a diary. But yes, 70 आ रहा है तो 74 will definitely come. There were days when I didn't feel like studying. There were days when I was tired, frustrated, and distracted. But basically, what matters is consistency, not being motivated every day. So, what basically happened during my CLAT preparation, there were some type of days in which I was not motivated. I did not had any motivation to study further for CLAT. There were days like जहाँ पे मेरे को मन करता था कि मैं क्विट कर दूँ. मैं ऐसे सोचूं कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना लेंदी प्रोसेस है, रोज़ मॉक देना है, रोज़ आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, देन स्कोर्स नहीं बढ़ रहे तो उसका टेंशन है. तो मोटिवेशन आपको ज़रूरी नहीं हमेशा रहे. वॉट मैटर्स इज़ योर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ वॉट मेक्स यू अ टॉपर. And what makes you a topper is to study during the boring days. जिस दिन आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जिस दिन आपका मूड नहीं है, तब भी आप उस दिन पढ़ रहे हो, आप समझ लेना आप सही पाथ में हो. क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा एक टास्क रहता था कि आज तो मूड नहीं है मॉक देने का, देन तब भी मैं 2 से 4 बैठती थी मॉक देने की, नहीं मैं दूंगी. आई वॉज कंसिस्टेंट ड्यूरिंग माई preparation. Thirdly, stop comparing yourself with others, because when you go to a like
Coaching like legal edge, law prep. I was going to an unknown offline coaching. तो या वी वर वेरी लाइक फ्यू पीपल फॉर क्लैट. हम बहुत ही कम बच्चे थे तो इतना कुछ रहता नहीं था, बट उसमें भी कंपैरिजन आ जाता है कहीं ना कहीं. बट जब मैं लीगल एज में मॉक देने गई, देन आई फेल्ट लाइक यस कॉम्पिटिशन इज़ रियल हियर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे थे. यहाँ पे मैं बूट कैम्प में देखी, वो इतने सारे बच्चे, इनका ये मार्क्स आ रहा है, इनका वो मार्क्स आ रहा है, बट आई नेवर कंपेयर्ड माई क्लैट जर्नी विद देयर्स, बिकॉज उनकी स्पीड अलग होगी, मेरी स्पीड अलग होगी. मैं अलग मॉक की स्ट्रैटेजी से जा रही हूँ, वो अलग मॉक की स्ट्रैटेजी से जा रहे हो. व्हाट आई कैन डू हियर इज़ लाइक try to improve my own score, try to focus on my own CLAT journey, my own preparation, and try to take tips from them, like what are you doing that you're getting so good grades. So tell us कि मैं भी ये कैसे कर सकती हूँ. अगर आपके वो फ्रेंड्स हैं तो आप अच्छे से उनसे एडवाइस लेके आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो. ये कॉपी भी नहीं है, ये कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट यू बोथ आर ट्राइंग पॉजिटिवली. आप इम्प्रूव कर सकते हो रैदर दैन अगर आप कंपैरिजन में फंसोगे तो कुछ नहीं होगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी. आप ये सोचोगे मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, फालतू की चीज़ें यहाँ वहाँ की. उससे अच्छा आप टिप्स लीजिए, ट्रिक्स लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, आप में भी काम पड़ेगा और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होगा. मेकिंग परफेक्ट नोट्स, यस, बट आई वॉज नॉट वन ऑफ देम ऑनेस्टली. मैं कभी ऐसे कलर करके हाईलाइट करके मैं ऐसे कभी नोट्स नहीं बनाती थी. तो क्या मीन्स बहुत सारे बच्चे किसी चीज़ को पिंक करेंगे, ब्लू करेंगे. आई यूज़ टू लव देयर नोट्स, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची कभी नहीं रही हूँ. मेरे को बचपन से ही कोई भी प्रोजेक्ट बनाने दे दो तो मुझे सबसे पहले मौत आने लगती थी कि नहीं मैं कैसे करूँगी ये वो. तो मैं कॉलेज में भी ऐसा कुछ नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ पेन से लिखती थी, ब्लैक पेन या ब्लू पेन. ब्लैक पेन भी मैं सजाने की हेडिंग लिखने के लिए नहीं करती थी अपने नोट्स के साथ. तो येस, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जो इम्पोर्टेंट है एक कलर रखो, हाईलाइट कर दो. लाइक जीके में मैं ऐसा करती थी कि मैं पिंक या न्योन से सिर्फ हेडिंग्स की ये इंपॉर्टेंट है, लाइक टू सेपरेट, लाइक टू लाइक डिस्टिंग्विश, कि तुमको पता चले कि ओ दिस इज़ फॉर दैट, दिस इज़ फॉर दैट. बट इट डिपेंड्स कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं ऐसे नोट्स नहीं बनाया हूँ जिसमें मुझे समझ आएगा ये वो है, आप देख लो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है. माई पॉइंट हियर इज़ दैट कि आपको जैसा लग रहा है नोट्स आप वैसे बनाइए, बट आप कंपेयर मत कीजिए दूसरों के नोट्स से कि इसके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसने तो सब लिख रखा है ये वो. like basically what is working for you, do that. Fifth is like reading is more important than most CLAT aspirants realize. रीडिंग, क्लाट एक रीडिंग एग्ज़ाम है. अभी तक आपको देते देते सिलेबस देखते देखते मॉक्स देते देते ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड आफ्टर दैट सिर्फ रीडिंग नॉट एप्लीकेबल, आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा. तो वॉट बेसिकली हियर इज़ दैट कि आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आपका रीडिंग गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बिकॉज अगर आप रीड ही नहीं कर पाओगे, और फास्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ अ स्किल विच इज़ द मैंडेटरी स्किल दैट यू रिक्वायर इन CLAT, like for cracking the CLAT, for clearing the CLAT, आपको ये चाहिए ही चाहिए ये स्किल. बिकॉज रीडिंग भी एक स्किल है कि आप ये स्किम करना है, ये धीरे पढ़ना है, ये जल्दी पढ़ना है. इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन साइड यू जब when you read so many books, when you read so many novels, when you read so many editorials, then you will get the hang of it. आपको समझ आने लगता है कि इस चीज़ में मेरे को स्किम करना है, इस चीज़ में रहना है, इसको इंटरप्रेट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है. तो बेसिकली रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ, there is no magical strategy that any topper can give you, and it is not necessary that magical strategy. If the like I have seen that most of the people asking कि टॉपर्स का या फिर टॉपर्स के इंटरव्यू सुनना कि आपने कैसा स्ट्रैटेजी किया था, आपने कैसे स्ट्रैटेजी किया था. मैंने ये भी बोला है कि आप दूसरों के टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए और उसको अप्लाई कीजिए. आप खुद के में भी अप्लाई करके देख सकते हैं. बट आई मेंट बाय सेइंग दैट कि अगर आप अप्लाई करके देखिए आपने काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है कि देखो ये टॉपर ने दिया है, आप इसको लीजिए, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, आपके में काम कर जाएगा.
नॉट नेसेसरी, क्योंकि सब बच्चों की ना क्लैट प्रिपरेशन की जर्नी ना काफ़ी अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं तो 3 महीने में करके क्लैट निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 2 साल में करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल में करते हैं, कुछ होते हैं 4 महीने में। डिपेंड्स, वेरीज, क्योंकि लोग अलग है, इंसान अलग है, सब अलग है। तो यस, कि अब ज़रूरी नहीं है कि वो मैजिकल स्ट्रैटेजी जिसका ईयर 1 आया है, ईयर 20 आया है, वो आपको बताएगा कि देखो लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश, फिर लीगल, फिर ऐसे ऐसे करो, इसमें ये क्वेश्चन लगाओ, इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। नॉट नेसेसरी, क्योंकि कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आप ही खुद से फिगर आउट कर पाओगे आपके लिए क्या काम कर रही है चीज़ें। आप ही खुद के लिए टाइम टेबल बना सकते हो, आप ही खुद के लिए एक लिस्ट बना सकते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आई वुड से टेक एडवाइस, बट डोंट रिलाई इट ब्लाइंडली कि देखो यही करना है, यही है मैजिक। डोंट डू दैट। एंड देन लास्टली, making CLAT your entire life. It means the CLAT is your entire life. This might be the most important part of the video. Yes, CLAT is important, very important, but don't make your entire future like about CLAT, like CLAT. Yes, I would say कि आप क्लैट के बारे में सोचिए, आप उसके पीछे पूरा डेडिकेशन से लग लीजिए कि आप जिसको चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उसको आपके पास लाती है। सुना है ना ये लाइन? तो येस, आई वुड से कि फोकस ऑन क्लैट, स्टडी फॉर क्लैट, थिंक अबाउट क्लैट, बट डोंट थिंक सो मच कि आपकी एंटायर लाइफ ही क्लैट पर डिपेंडेंट हो जाए। योर लाइफ इज़ मच मोर बिगर दैन दिस एग्ज़ाम।